Work services for resurfacing of dispersal, all links, taxi tracks for C-17 operations and construction of parallel taxi track at Air Force Station Leh was sanctioned under the Annual Major Works Programme financial year 2015-16. The administrative approval amounting to rupees 317.85 crores was issued and the work released on 30th March 2016. Revised administrative approval amounting to rupees 452.15 crores was accorded by the Ministry of Defence on 14th October 2021. The contract was concluded on 18th August 2022 and awarded to Mr. Dinesh Chandra Agarwal Infracon Private Limited. The work started on 9th of September 2022 and completed in all respect on 18th August 2025. Runway of resolve and a launchpad of national strength. This parallel taxi track is more than an infrastructure. It is a continuation of history, a symbol of national resolve, and a runway that carries the hopes, security, and sovereignty of India. It is carved out in one of the most challenging aviation environments, represents a major enhancement in our operational capability. It will enable faster troop and equipment induction, greater operational flexibility and joint force integration. It shall also enhance the operational reach and responsiveness, will strengthen logistics and rapid deployment capability. Saji! इसको साइड करो यार The air officer, in the recognition of his distinguished service, he has been awarded by the AOC&C Army Commander and awarded with the air officer is married to Mrs. Anita Moore. They are blessed with 2 sons.
was sworn in 2019, State of Jammu and Kashmir and Territories. Honorable Lieutenant Abbas, both in the government and within his party. He is mayor for a record 3 consecutive terms from 2005 to 2010. Unit of Bharatiya Janata Youth person on links taxi track for C-17. The heaviest aircraft in the IAF inventory marks a transformational transition to enhanced operational efficiency, safety and responsiveness of Leh Airfield. From an operational perspective, this facility will strengthen our ability to support heavy transport aircraft operations, including the C-17 and other strategic and tactical airlift platforms that are the backbone of sustenance in Ladakh. The PTT project will significantly reduce runway occupancy, enable faster clearances of aircraft after landing, and quicker lineup for departures. This improvement in infrastructure will directly translate into higher sortie generation capability, improved safety margins, and faster ground movement of aircraft. प्रोजेक्ट के इस मुहूर्त पर हमारे बीच में प्रमुख रूप से उपस्थित कि हमारे चीफ सेक्रेटरी श्रीमान आशीष कुंद्रा जी, पैरेलल टैक्सी ट्रैक प्रोजेक्ट के उद्घाटन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित होकर के अत्यंत प्रसन्नता अनुभव हो रही है। ये परियोजना लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को मजबूत करेगी और साथ ही यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कि देश की बाकी हिस्सों से वाइटल एयर कनेक्टिविटी को और अधिक रिलायबल बनाएगी। ले एयरफील्ड हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर्स की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ये लद्दाख के लोगों के लिए एक लाइफलाइन भी है, खास करके हार्श विंटर के दौरान जब श्रीनगर, लेह और मनाली ले जैसे मुख्य रूट्स बंद रहते हैं, तब यही एयरफील्ड पूरे क्षेत्र को देश के साथ जोड़े रखता है। आज पैरेलल टैक्सी ट्रैक प्रोजेक्ट के अंतर्गत पैरेलल टैक्सी ट्रैक 2 बड़े एयरक्राफ्ट डिस्पर्सल और 5 टैक्सी लिंक्स तैयार किए गए हैं। ये सभी जो सुविधाएं हैं सबसे भारी एयरक्राफ्ट के संचालन के लिए बनाई गई हैं। इस परियोजना से ले एयरफील्ड की ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सेफ्टी और ओवरऑल रिस्पॉन्सिवनेस में बड़ा सुधार होगा, चाहे वह मिलिट्री एविएशन हो या सिविल एविएशन। आज से मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ पैरेलल टैक्सी ट्रैक पर ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। सिविल एयर ट्रैफिक के लिए इसे पूरी तरह फंक्शनल बनाने हेतु लैंडिंग डायरेक्शन में ग्लोरी हिल के एक और हिस्से से उत्पन्न ऑब्स्टेकल्स को हटाने का कार्य यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाएगा और भविष्य में जब मेन रनवे को रीसर्फेसिंग किया जाएगा तब ये पैरेलल टैक्सी ट्रैक नागरिक विमानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। लद्दाख के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आज यहाँ पर एक हमारा जो नया रनवे तैयार हुआ है और इसके साथ ही जो 5 टैक्सीवेज बने हैं, कुल मिलाकर के 21 महीने में इस काम को किया जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस मुबारक मौके पर हमारे बीच में एयर मार्शल जीएस मान हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा जी हैं, बाकी हमारे आर्मी के सभी टॉप ऑफिशियल हैं और यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया गया, मिश्रा जी, प्रमोद मिश्रा जी हैं। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में
लद्दाख जैसे एक बड़ी स्ट्रेटेजिक स्टेट है और यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तैयार किया जाना। मैं विशेष करके प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जो हमेशा से जिनके आने पर लद्दाख को एक विशेष जो डिफेंस के मामले में विशेष ध्यान दिया गया है और आने वाले समय में ये हमारा जो ऑपरेशंस हैं उनको तो ये रनवे ठीक बनाएगा ही, इसके साथ साथ जो हमारे सिविलियंस हैं उनको भी सहायता मिलेगी। मैं एयरफोर्स के तमाम ऑफिसर्स का, आर्मी के तमाम अफसर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके हमेशा यहाँ पर जो सपोर्ट के साथ लद्दाख के लोगों को हमेशा मुश्किल समय में भी जब कहीं किसी को किसी बीमारी के कारण से या दूसरे कारण से एयरलिफ्ट करना पड़ता है तो उनका पूरा हमें जो सहायता पूरी मिलती है। तो मुझे लगता है कि जो आपस में हमारी एक कॉपरेशन है सिविल मिलिट्री की, उसके कारण से लद्दाख में लोगों को भी सुविधा मिलेगी, जो आने वाला जो लाखों की तादाद में टूरिस्ट है उसको भी यहाँ पर सुविधा मिलेगी। सर इस मौके पर ये भी पूछना चाहेंगे सर, जो सिविलियन एयरपोर्ट का है, प्राइम मिनिस्टर अगले साल इस जुलाई इनॉग्रेशन करने की बात चल रही है। देखिए हाँ, कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये फाइनल स्टेज पर है। पिछले दिनों मैंने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी और मुझे लगता है कि अप्रैल में ये कंप्लीट होगा, या उसी तरह से हम प्रधानमंत्री जी से समय लेकर के उनको भी लद्दाख बुलाएंगे ताकि लद्दाख की तरफ और उनकी तवज्जो बढ़े। सर जिस तरह यहाँ के डबल बेस हो गया सर, न्यूमा में भी कंप्लीट हो गया, कितना सक्षम हो जाएगा सर हमारा डिफेंस? देखिए चाहे थाइस है, चाहे न्यूमा है, चाहे कारगिल है या लेह है, सभी ये जो 4 हमारे एयर बेस हैं और इसके साथ ही कई 32 के लगभग मुझे लगता है हेलीपैड्स हैं, उसके कारण से लद्दाख में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पर आर्मी एयरफोर्स के माध्यम से हम नहीं पहुंच पाते। सर आखिर में जो आज सुबह मुंबई से दुखद खबर आया उसके बारे में क्या कहें? देखिए बड़ी दुखद घटना है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से एयर क्रैश में देहांत हुआ है, मैं उनके परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे।